have not joined, they will keep joining, but we'll start with the chapter. Chapter number 9, first Indian women mountaineer, Bachendri Pal. Okay, so who is a mountaineer? Mountain ka matlab pahad, right? And mountaineer means what? Pahad chadne wala, ya pahad chadne wali, that's a mountaineer. Any person who climbs the mountain is called as mountaineer. Okay, so Bachendri Pal was also a mountaineer. And what is special about this mountaineer? What is special about her? बहुत सारे mountaineers होते हैं, but she was the first Indian woman who was a mountaineer. Okay, India में women में बहुत interest नहीं था mountain चढ़ने के लिए, but she was the first one to climb the Everest. Okay, she was the first Indian woman to climb the Everest, Mount Everest. Okay, children, so we will start with Bachendri Pal. Who is Bachendri Pal? किसी ने कभी GK books के अंदर फोटो देखा? She was a very very famous lady in India, Bachendri Pal. And what is famous about her is that she was the first woman. जब माउंटेनियरिंग के अंदर फर्स्ट कोई लोग इतने वुमेन नहीं थी, इतनी वुमेन नहीं थी इस फील्ड के अंदर, बट बचेंद्री पाल इन इंडिया, शी वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, एंड दैट इज सो स्पेशल अबाउट हर. माउंट एवरेस्ट चढ़ना बहुत इजी काम नहीं है, दैट वाज अ difficult task, and Bachendri Pal did that, and that is what she is known for. Okay, so today we will do the vocabulary part of the chapter, and then we will start with the chapter explanation in the next class. Okay, I need you all, if you're able to see the vocabulary on your screens, that is okay. If you're not able to see the vocabulary on your screens, you can take out your books. You can take out your books and you can take out the vocabulary there. If you're able to see it on your screens, it's clearly visible to you on your screens, then well and good. My screen, the screen which I'm sharing, is that clearly visible to you, children? The screen which I'm sharing, clearly visible? All good? Okay, so let's start with the, just a second. Let's start with the vocabulary of chapter number 9, first Indian women mountaineer. Okay, so first is a milestone. Milestone means what? Milestone. Mile मतलब क्या होता है? जैसे हम किलोमीटर्स में डिस्टेंस नापते हैं, वैसे हम माइल्स में भी डिस्टेंस नापते हैं. ओके, so हर थोड़ी आपने देखा होगा रोड पे साइड में पत्थर लिखा होता है, भिलवाड़ा 30 किलोमीटर, जयपुर 200 किलोमीटर, ऐसा लिखे रहते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज माइलस्टोन. ओके, उनको क्या कहते हैं? मील का पत्थर. मतलब कि हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, अब आगे यहाँ से इतना जाना है, अब यहाँ से आगे भिलवाड़ा के लिए 30 किलोमीटर जाना है. दैट मीन्स व्हाट? यू हैव रीच्ड समवेयर एंड यू नीड टू रीच समवेयर एल्स. आपको कितना और चलना है आपको वो बताएगा. सो माइलस्टोन मीन्स किसी के भी एक तो रोड पे जो मील का पत्थर होता है उसे भी हम माइलस्टोन कहते हैं. और जैसे कि मैंने 10th क्लास पास कर ली है, दैट इज अ माइलस्टोन इन माय लाइफ. दैट मीन्स व्हाट? मैंने 12th क्लास पास कर ली है, दैट इज अ माइलस्टोन इन माय लाइफ. मतलब कि मैं 10th क्लास पास कर ली है, ये मेरी जीवन का एक माइलस्टोन है. दैट मीन्स मैंने यहाँ तक पहुंच गई हूँ, आगे और चलना है. 12th क्लास पास कर ली है, that means I have passed class 12th and that is a milestone in my life, another milestone in my life. तो ऐसे आपके जीवन में, in your life, when you have so many, आप मार्क कर सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक गई, फिर यहाँ से यहाँ तक गई, यहाँ से यहाँ तक गई. So your life is also a journey, so you can mark your milestones in your life. And similarly on the roads you might have seen, जो रोड पे जो साइड में पत्थर लगे होते हैं, उस पर लिखा होता है कि this city Jaipur is 200 kilometers, that is called as milestone. Okay, next one is perseverance. Perseverance means what? When you are determined about something, when you are determined about something, आप किसी भी चीज के बारे में एकदम श्योर हो कि मैं ऐसा तो करूंगा ही, मैं ऐसा तो करूंगी, that is called as perseverance. For example, Bachendri Pal was a woman of perseverance. Okay, Bachendri Pal जो है एक दृढ़ निश्चय वाली औरत थी. Okay, she was a woman who decided, जो आप उसने डिसाइड कर लिया वो करती थी. Okay, next one is indomitable. Indomitable means unbeatable, जिसको आप हरा नहीं सकते, someone जिसको आप beat नहीं कर सकते, that is called as indomitable person. For example, Bachendri Pal was an indomitable mountaineer. ऐसी mountaineer थी जिसे कोई beat नहीं कर सकता, जिसे कोई हरा नहीं सकता. Her confidence was indomitable. उनके confidence को कोई हरा नहीं सकता था. That is called as indomitable, unbeatable. Okay, next one is surmounted. Surmounted means when surmount
का मतलब कोई भी चीज किसी के ऊपर होती है, दैट इज कॉल्ड एज सरमाउंटेड। किसी की चीज के ऊपर निकल जाना, कोई भी चीज ओवरकम कर लेना, दैट इज कॉल्ड एज सरमाउंटिंग। मतलब आप आगे बढ़ गए कोई चीज से, दैट इज कॉल्ड एज सरमाउंटिंग। सरमाउंटिंग मीन्स आपने कोई चीज थी, कोई आपने आपकी लाइफ में एम था, आपने उसको पा लिया, आपने उसको आगे बढ़ गए, दैट इज कॉल्ड एज सरमाउंटिंग। फॉर एग्जाम्पल, बचेंद्री पाल वॉज सरमाउंटेड विद द एम ऑफ क्लाइंबिंग द माउंट एवरेस्ट। बचेंद्री पाल ने उसका जो एम था माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने का, वो उसने सरमाउंट कर लिया, वो उसने पा लिया, वो उसने हासिल कर लिया। नेक्स्ट वन इज पीक। जो जैसे आपकी माउंटेन्स होती है, माउंटेन्स के अंदर जो हाइट्स होती है, उनसे हम क्या कहते हैं, चोटी। ओके, सो माउंटेन की जो चोटी होती है, द पीक ऑफ अ माउंटेन, पीक ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड एज, सबसे हाईएस्ट जो चीज होती है किसी भी चीज की, दैट इज कॉल्ड एज पीक। ओके, सो पीक मींस द समिट ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज की चोटी, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग इज कॉल्ड एज पीक। फॉर एग्जाम्पल, द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊपर चोटी। माउंट एवरेस्ट का चढ़ना मतलब ये नहीं कि मैं माउंट एवरेस्ट पे ही मैं सबसे चढ़ती गई, कहीं पे भी जाके मैंने बोल दिया मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ ली हूँ। नो, you have to reach the peak, you have to reach the highest point of Mount Everest. Next one is remain. Remain means what? Remain मतलब रहना, when you stay, कहीं भी चीज रहना, that is called as remaining. Okay, for example, Bachendri Pal remained the first Indian mountaineer to climb Everest. Okay, Bachendri Pal क्या रही? Remain means रहना. Also, let me give you another example. There are only 2 chocolates left in my pocket. मेरे पॉकेट में अभी 2 ही चॉकलेट बची है. There are only 2 chocolates remaining in my pocket. मेरे पॉकेट के अंदर 2 ही चॉकलेट रिमेन के लिए 2 ही चॉकलेट बची है. बची रहना, रहना, that is called as remaining. Next one is limited. Limited means कम अमाउंट में, सीमित अमाउंट में, एक पर्टिकुलर अमाउंट में कोई आपके पास चीज होना, that is called as limited. For example, I had limited number of books. मेरे पास एक पर्टिकुलर क्वालिटी, पर्टिकुलर नंबर की, एक सीमित नंबर की मेरे पास बुक्स हैं. I have limited number of books. मेरे पास कुछ ही बुक्स है, बहुत ज्यादा नहीं है. Next one is distinguished. Distinguished means किसी भी चीज से अलग होना. Okay, distinguished. For example, Bachendri Pal can be distinguished from the normal Indian women. Bachendri Pal को हम दूसरी जो इंडियन women है उनसे अलग रख सकते हैं, because she did something very very special. उन्होंने कुछ बहुत स्पेशल किया है, इसलिए हम बचेंद्री पाल को we can distinguish her herself. कोई एक जो आप स्पेशल हो, अब विशेष हो, उसे कहते हैं distinguished. Next one is exposed. Exposed means कोई भी चीज किसी को बता देना, उजागर करना, बताना. किसी भी चीज आपने आपके पास छुपी हुई थी and you exposed it to someone. आपने कोई भी चीज बता दी, कोई चीज उजागर कर दी, कोई बात बता दी, that is called as exposing. For example, Bachendri Pal was exposed to mountaineering at a very early age. Bachendri Pal जो है माउंटेनियरिंग के लिए, पर्वतारोहण के लिए, mountaineering means what? पर्वत चढ़ने का जो आर्ट है, that is called as mountaineering. Okay, so Bachendri Pal, she was exposed to mountaineering at a very early age. बहुत ही छोटी बहुत ही छोटी उम्र में बचेंद्री पाल माउंटेनियरिंग करने लगी थी. Next one is spend. Spend, you know, कोई भी चीज खर्च करना, that is called as spending. For example, I have spent all the money I had. मैंने मेरे पास जो भी पैसा था सारा खर्च कर दिया, सारा मनी स्पेंड कर दिया. Next one is anchored. एंकर आपने देखा है, जो शिप होती है, शिप का जो जहाज है, जो भी बड़े बड़े जहाज होते हैं, उसको एक जगह पे स्टॉप कैसे करते हैं? वो तो आप पानी के ऊपर बहता जाएगा ना. So how do you stop a ship or how do you stop a boat? उसमें क्या करते हैं, जो बड़ा सा लोहे का एक एंकर होता है, ठीक है, एक बड़ा सा जो एंकर होता है, उसको हम पानी में डाल देते हैं ताकि वो शिप वहीं के वहीं पे खड़ी रहे. एंकर एक बहुत बड़ा हेवी सा लोहे का पार्ट होता है, उसको वो पानी में डाल देते हैं, चेन से बंधा हुआ रहता है वो शिप से, ताकि वो शिप वहीं के वहीं स्टेबल हो जाती है. ओके, सो एंकर मींस जो एंकर होता है, लोहे का एक बहुत हेवी पार्ट जिससे शिप को स्टॉप किया जाता है. एंड एंकर्ड मींस शिप को स्टॉप कर देना, किसी भी चीज को स्टॉप कर देना, दैट इज कॉल्ड एज एंकरिंग. एंकरिंग ये वो वाली एंकरिंग नहीं, आप बातों में जो एंकरिंग कर रहे हो वो वाला, दिस इज अनदर एंकर. ओके, एंकर जिससे शिप को स्टॉप किया जाता है. नेक्स्ट वन इज एनकरेज्ड. एनकरेज्ड मींस किसी को भी प्रोत्साहित करना, किसी को भी
बोलना कि आप ऐसा कर सकते हो, किसी को मोटिवेट करना, दैट इज कॉल्ड एज एनकरेज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, a teacher of Bachendri Pal encouraged her to become a mountaineer. एक बचेंद्री पाल की एक टीचर ने बचेंद्री पाल को एक माउंटेनियर बनने के लिए प्रोत्साहित किया, उसको मोटिवेट किया। नेक्स्ट वन इज एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड मीन्स व्हाट? कोई भी चीज एक्सपेक्ट करना, आप कोई भी चीज की उम्मीद रखना कि ऐसा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एक्सपेक्टेड दैट माई हाफ ईयरली एग्जाम्स विल गो वेल। मैंने एक्सपेक्ट किया, मैंने उम्मीद की कि मेरे हाफ ईयरली एग्जाम्स अच्छे जाएंगे। Okay, I expected that my half yearly exams will go well. Next one is determination. Determination means what? दृढ़ निश्चय। Okay, आपने आप when you are very very confident about something. Okay, कोई भी चीज आपने डिसाइड कर ली कि आप, जैसे हम determined पढ़ा हमने, राइट? अभी determined means आप कोई भी चीज आपने डिसाइड कर ली और आप वो पाते हो, ठीक है। डिटर्मिनेशन मीन्स द सेम, कि आपने एक निश्चय कर लिया, आपने डिसाइड कर लिया एंड यू रीच दैट, कि मैंने डिसाइड कर लिया इस बार तो मैं हाफ ईयरली में फुल मार्क्स लाके रहूंगी। दैट इज कॉल्ड एज डिटरमिन्ड। आई वाज डिटरमिन्ड टू गेट फुल मार्क्स इन हाफ ईयरली एग्जाम्स। मैंने डिसाइड कर लिया था कि इस बार मैं हाफ ईयरली में फुल मार्क्स लाके रहूंगी। ओके, नेक्स्ट वन इज सुइंग। सुइंग मीन्स व्हाट? सिलाई करना। ओके, सू मीन्स सिलाई करना, नीडल से, जो सुई से सिलाई करना, दैट इज कॉल्ड एज सुइंग। नेक्स्ट वन, परसुएडेड। परसुएडेड मीन्स किसी भी चीज को के लिए मना लेना किसी को। फॉर एग्जाम्पल, आई परसुएडेड द स्टूडेंट्स टू स्टडी फॉर द हाफ ईयरली एग्जाम्स। मैंने स्टूडेंट्स को हाफ ईयरली एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए मना लिया। ओके, परसुएड मीन्स मना लेना। नेक्स्ट वन इज शूटिंग। शूटिंग इज shooting. When you shoot someone with a gun, when you shoot someone with a bow, किसी को गन से शूट करना, एरो से शूट करना, that is called as shooting. शूट करना, निशाना लगाना, that is called as shooting. For example, I learned shooting at the age of 10. मैं 10 साल की थी तब मैंने shooting सीखी। Next one is mentor. Mentor is a very nice word. Okay, you should learn and you should use this often in your vocabulary. जब आप generally बात करते हो, you should use this word. What is this word? Mentor. Okay, how do you pronounce it? It's mentor. Okay, mentor का मतलब क्या होता है? आपका कोई भी टीचर, आपका कोई भी आपको सलाह देने वाला, आपको कोई राह बताने वाला, that is called as mentor. आपको आपका रास्ता बताने वाला कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, that is called as mentor. Okay, so I hope you will use this word mentor quite often in your vocabulary. Okay, mentor, we learned this word and we cram this word today. Mentor means आपको रास्ता दिखाने वाला, आपको सलाह देने वाला, that is called as mentor. Next one is desire. Desire is wish. आपकी कोई भी इच्छा, जो आपकी कोई भी wish है, उसे कहते हैं desire. It was my desire to get full marks in half yearly exams. मेरी बहुत इच्छा थी, मेरी बहुत wish थी कि मुझे half yearly exams में full marks मिले. Okay, Chirag Soni is raising his hand. Do you have any issue, Chirag? Chirag, you were raising your hand. Do you have any problem? Just raise your hand again so then I can unmute you, Chirag. I'm not able to see you. Chirag, just raise your hand again so then I can ask you what the problem you had. Where is Chirag? I'm not able to see you. Okay, I'm not able to see where Chirag is. Just raise your hand just in case you have any other problem. Okay. Okay. Yeah. Okay, some people are still joining the class. Okay, children. So next one we have is desire हो गया हमारा. Desire is a wish you have. Okay. अच्छा. Also, what you can do is, जैसे मैं आपको अगर कोई vocabulary explain कर रही हूँ, what you can do, आपको जो meaning difficult लगता है या आपको ऐसा लगता है कि it has not been explained properly in the book, you can write down the meaning जो मैं आपको explain कर रही हूँ, उसी के सामने आप book में लिख सकते हो with your pencil or with your pen. Okay, जो भी आपको word difficult लगे, whichever word you find difficult, what you can do is you can write that in front of in your book only. उसी के सामने आपके यहाँ जो spaces है ना, ये जो spaces है वहीं पे लिख लो. आपको जो भी word difficult लग रहा है उसका explanation जो मैंने दिया है आप लिख सकते हो. Okay, if you want, it will be helpful for you when you will study again in your exams, for your exams.
Okay, next, expedition. Expedition means what? कोई journey, छोटी सी यात्रा और short trip is called as expedition. कोई भी expedition, कोई अभियान चलाना, that is called as expedition. For example, Bachindri Pal went on an expedition for Mount Everest. Mount Everest चढ़ने के लिए जो अभियान चला था बचिंद्री पाल उसके लिए गई. Okay, next one is spare. Ayansh Kabra, second A. Wait. You're trying to admit the class. Ayansh Kabra, just raise your hand, dear. Ayansh Kabra, just raise your hand faster. Ayansh Kabra. Ayansh Kabra, I have just admitted you in the class. Just raise your hand. Ayansh Kabra. Ayansh Kabra, just raise your hand. I need to see you. Where are you? Ayansh Kabra, raise your hand. Ayansh, I'm unmuting you. Ayansh, I hope I have unmuted you or I have unmuted some other person. I'm not able to see. Ayansh, just raise your hand. Ayansh, you are from second A. Ayansh, I have unmuted you. Just tell me this thing. Are you from second A? Ayansh Kabra. Children, do you have any student named Ayansh Kabra in your class? Anyone? Children, I'm asking other people. Do you have a student named Ayansh Kabra in your class? Ayansh, if you're from second A, why are you joining my class? This is a class of 6th class. Why are you joining if you are not from this class? Children, do you have a student named Ayansh Kabra in your class? Anyone? Is it a yes or no? Do you have a child named Ayansh Kabra? Someone has written. So Ayansh, just leave my class now. This is not your class, and जब दूसरे बच्चों की class हो रही है, just don't try to join this class, okay? Okay. Okay, children, let's continue with the class. Let's not spare time. Don't have space. Okay. I got it. It's a no. I get it. It's a no. Ayansh Kabra, you are again trying to enter my class. I will not let you admit, okay? You are from second A. You're not from my class. It's a class or 6th one. Okay. Let's move toward the 21st one. Spare. Spare means extra. Okay, this is also another good word which you can use. I get it, children. I get it. It's a no. I get it that Ayansh Kabra is not in your class, and I have मैंने उसको निकाल दिया क्लास से अभी. Okay, let's move towards the vocabulary which we were doing. Spare. Spare means what? Extra. कोई भी चीज आपके पास extra हो, extra है, extra नहीं है, that is called as spare. For example, I don't have any spare pencil. मेरे पास extra pencil नहीं है यार. आप जैसे बोलते हो ना, तो आप spare जो word है, you can use it in your daily vocabulary. क्या word है? Spare. मतलब एक्स्ट्रा. आप बोलते हैं मेरे पास एक्स्ट्रा पेंसिल नहीं है, मेरे पास एक्स्ट्रा पेन नहीं है. सो दैट इज व्हाट स्पेयर इज. स्पेयर मींस एक्स्ट्रा. आपके पास एक के अलावा दूसरी चीज भी हो, दैट इज कॉल्ड एज स्पेयर. फॉर एग्जांपल, आई डोंट हैव अ स्पेयर फोन. मेरे पास एक्स्ट्रा फोन नहीं है, मेरे पास एक्स्ट्रा पेंसिल नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज स्पेयर. आई होप यू कैन यूज दिस वर्ड इन योर डेली vocabulary. So 2 words we are cramming today. One word is mentor. And what is the meaning of mentor? I hope you all know now. Mentor is the one who gives you advice. Mentor is the one who gives you, आपको रास्ता दिखाता है, आपको सलाह देता है. That's the mentor. Spare means extra. कोई भी चीज आपके पास extra नहीं है, extra है, that is, then you can use the word spare. I don't have a spare phone. I don't have a spare pencil. Okay, let's move towards the next one. Financial. Financial मतलब आप पैसे से related कोई भी चीज, उसे कहते हैं financial. For example, financial minister. फाइनेंशियल मिनिस्टर कौन होगा? जो पैसे से रिलेटेड डिसीजन जो देखेगा, दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल मिनिस्टर. ओके. फाइनेंशियल कंडीशन. मेरी पैसे से रिलेटेड कंडीशन कैसी है, मेरी पैसे से रिलेटेड कैसा है मेरे पास, दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल. ओके. Vedang Pathak is raising his hand. Vedang, do you have an issue? I'm unmuting you, Vedang. Yes, Vedang. Yes, ma'am. बोलो. Ma'am, what is the meaning of financial? Meaning of financial. Just told you, फाइनेंशियल का मतलब
पैसे से रिलेटेड, एनीथिंग रिलेटेड टू मनी. ओके, एनीथिंग रिलेटेड टू मनी इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल. फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल मिनिस्टर. फाइनेंशियल मिनिस्टर कौन होगा? जो पैसे से रिलेटेड सब कुछ देखता होगा. ओके, एनीथिंग रिलेटेड टू मनी इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल. हाउ इज योर फाइनेंशियल कंडीशन? व्हेन आई आस्क समवन, मैं किसी को पूछती हूँ कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, मतलब आपका पैसे से रिलेटेड जो है स्थिति वो कैसी है, मतलब आपके पास इनफ पैसा है नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल. ओके, फॉर एग्जाम्पल ही इज फाइनेंशियली वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब कि वो जो पर्सन है वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है. इसका कहने का मतलब क्या है कि मतलब उसके पास काफी पैसा है. मैंने कहा ही दैट पर्सन इज फाइनेंशियली वेरी वीक. मैंने कहा कि वो पर्सन जो है वो फाइनेंशियली वीक है, मतलब कि उसके पास कम पैसा है. ओके, फाइनेंशियल इज एनीथिंग रिलेटेड टू मनी. ओके वेदांत, क्लियर दैट? इज दैट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. ओके. ओके चिल्ड्रन, वन मोर थिंग आई नीड टू टेल यू ऑल. आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो आप मुझे, जब हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, यू आस्क योर प्रॉब्लम्स देन एंड देयर ओनली. ओके, जब हम चैप्टर्स डिस्कस कर रहे हैं, आप आपकी प्रॉब्लम्स तभी के तभी आप डिस्कस कर लिया करो. अभी मेरे साथ क्या हुआ हाफ ईयरली एग्जाम्स के अंदर, व्हाट हैपेंड, some children were asking me for the question and answers. आप मुझसे 15 मिनट पहले आप क्वेश्चन एंड आंसर्स पूछ रहे हो, एग्जाम आपका 4, 4:30 बजे है, आप मुझे बोल रहे हो 4 बजे मैम मुझे इसका क्वेश्चन का आंसर बता दो. I won't be able to do that there. Okay, I won't be able to do that. Why? Because आपका जब चैप्टर्स में आपको पढ़ा रही हूँ, आप मुझे उसके टाइम आप मुझे क्वेश्चन आंसर्स पूछो, उसके थोड़े दिन बाद क्वेश्चन आंसर्स पूछो, इज दैट इज ओके. बट एग्जाम्स चालू होते ही आप मुझे क्वेश्चन आंसर्स पूछ रहे हो, मैम हमें बता दो. आप मुझे एक दिन पहले पूछ रहे हो, मैम मुझे आप फर्स्ट से लेके 8 तक के सबके मुझे आप क्वेश्चन आंसर्स भेज दो. सो आई वोंट बी एबल टू डू दैट. आपको जो सारे के सारे आपके क्वेश्चन आंसर्स दिए जाते हैं, आपकी आंसर्स कीज दी जाती हैं जब हम चैप्टर्स कर रहे होते हैं. व्हाट डू वी डू? आई गिव यू द आंसर कीज एंड आई वेयर डू आई सेंड द आंसर कीज? आई सेंड यू द आंसर कीज इन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स ओनली. मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आंसर्स भेजती हूँ. आप वो आंसर्स तभी के तभी आपको आपके बुक के अंदर लिखने हैं. जो आपको मैं क्वेश्चंस के आंसर्स भेजती हूँ, आप तभी के तभी आप बुक के अंदर लिख लो. आपको लगे कि मैं बाद में नोट कर लूंगा, अभी रहने देता हूँ, मेरे पास व्हाट्सएप में है, यू वोंट बी एबल टू डू दैट. और मैं आपको वापस से सेंड नहीं करूंगी. आई हैव ऑलरेडी सेंट यू द आंसर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस इन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू कॉपी दोज आंसर्स फ्रॉम देन एंड देयर ओनली. तभी के तभी आपको कॉपी करना है, तभी के तभी आपको आंसर्स वहां से लिखने हैं अपनी बुक के अंदर. अलग से कॉपी भी नहीं चाहिए आपको, उसी बुक के अंदर आपकी जो बुक्स हैं उसके अंदर स्पेसेस हैं, वहीं पे आप आंसर्स लिख सकते हो. ओके, लेकिन आपको तभी के तभी लिखने हैं. आप मुझे एग्जाम के एक दिन पहले या 2 दिन पहले मुझे पूछो, मैम मुझे सारे के सारे आंसर्स दे दो, मुझे सारे के सारे चैप्टर्स के आंसर्स दे दो, आई वोंट बी एबल टू डू दैट. ओके, आई होप दैट इज क्लियर टू यू ऑल. Okay, someone is writing something in the chat room. What happened? Anyone has any doubt regarding this? What? Nobody is doing. Okay. Anyone has any doubt regarding this कि मैम हमें आंसर्स चाहिए, वापस चाहिए, हमें नहीं चाहिए? What? I hope that is clear to you that I won't be able to send you the answers again and again. मैं आपको एक बार आंसर्स आपके भेजती हूँ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, वहीं से आप अपनी बुक में कॉपी कर लो. ऐसा नहीं कि मैं व्हाट्सएप में रहने देता हूँ, बाद में देख लूंगा, बाद में सब डिलीट हो जाएगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट एंड आई विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड यू द आंसर्स अगेन. ओके, आई होप दैट इज क्लियर टू यू ऑल. Okay, so let's move towards the vocabulary. Trouble. Trouble means what? Trouble means musibat. कोई भी चीज समस्या कोई आना, that is called as trouble. Okay, for example, I fell in trouble. मैं मुसीबत में पड़ गई, मैं प्रॉब्लम में पड़ गई. Next one is desperately. Desperately means बहुत इच्छा से किसी चीज को जाना. Okay, desperately, बहुत urgently किसी चीज को जाना. ठीक है, that is called as desperately. Why is it written निराशा पूर्वक here? This is the wrong meaning of that. Okay. Desperately means आप कोई बहुत उत्साह से कोई चीज को चाहते हो, आपको कोई चीज बहुत उत्साह से चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज डेस्परेटली वेटिंग फॉर माई हाफ ईयरली एग्जाम्स. मैं बहुत डेस्परेटली अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स का वेट कर रही थी, मैं बहुत एक्साइटेड होके अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स का वेट कर रही थी. ओके, डेस्परेटली मीन्स जब आप बहुत एक्साइटेड होके किसी चीज के लिए काम करते हो, बहुत किसी चीज की राह देख रहे होते हो, किसी चीज का इंतजार कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड एज डेस्परेटली. Next one is interested. Anusha Jain is raising her hand. Anusha, do you have an issue? I'm unmuting you, Anusha.
मैम मैंने तो यहाँ पे डिस्परेट लिखा, मैम ये निराशापूर्वक गलत लिखा हुआ है क्या? हाँ जी, ये दिस इज अ रॉन्ग मीनिंग. ओके, तो डेस्परेटली मैम मीन, इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? हिंदी मीनिंग बेटा आप चेक कर सकते हो. मैं हिंदी मीनिंग एग्जैक्ट आपको कैसे बताऊं? मैंने आपको बताया ना कि किसी भी चीज का बहुत एक्साइटेड मैम होके इंतजार उत्सुकता। करना. हाँ, मैम उत्सुकता। उत्सुकता. ओके, यू कैन गेट इट. उत्सुकता. ओके, उत्सुकता, कोई भी चीज का एक्साइटमेंट से आपका किसी चीज का वेट करना, दैट इज कॉल्ड एज उत्सुकता. ओके, दैट इज कॉल्ड एज डेस्परेटली वेटिंग फॉर समथिंग. दैट मींस डेस्परेट होके, बहुत कीनली, बहुत शौक से, बहुत खुश होके इंतजार करना, किसी भी चीज का उत्सुकता से इंतजार करना, दैट इज कॉल्ड एज डेस्परेटली. किसी भी चीज को उत्सुकता से चाहना, दैट इज कॉल्ड एज एक डेस्परेटली. ओके, ओके मैम. Anusha, can you please mute yourself again? I'm not able to do so. Okay. Yeah. ओके मैम. Okay, so let's move towards the next one. Interested. Interested, you know. Interest means किसी भी चीज में interest रखना, किसी भी चीज में शौक रखना, focus रखना. That is called as, for example, I am interested in English. English में मेरा interest है, English में मेरी रुचि है. Next one is professional. Professional means I am a professional teacher. Okay, professional means occupational teacher. फॉर एग्जाम्पल, एक कुछ टीचर्स होते हैं जो ऐसे ही आप पढ़ाते हो, आप जैसे अपनी मम्मी से पढ़ रहे हो, आप अपनी दीदी से पढ़ रहे हो, भैया से पढ़ रहे हो, तो वो नॉर्मली आपके टीचर्स हैं. बट आई एम टीचिंग यू, आई एम अ प्रोफेशनल टीचर. मैं आपको प्रोफेशनली पढ़ा रही हूँ. टीचिंग मेरा प्रोफेशन है, दैट इज माई ऑक्यूपेशन. ये मेरा पेशा है, ये मेरा ऑक्यूपेशन है. ओके, सो पेशेवर कोई चीज काम करना, दैट इज कॉल्ड एज प्रोफेशनली. प्रोफेशनली आप कोई काम करते हो, ऑक्यूपेशन के लिए, जॉब के लिए आप कोई काम करते हो, दैट इज कॉल्ड एज प्रोफेशनल. Next one is mountaineering. Mountaineering means, mountaineer you all know, जो माउंटेन को चढ़े, that is called as mountaineer. जो पर्वत चढ़े, that is called as mountaineer. Next one is relatives. Relatives you all know. Relatives मतलब आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, that is called as relatives. For example, my relatives live in Jaipur. मेरे relatives जयपुर में रहते हैं, मेरे जो रिश्तेदार हैं वो जयपुर में रहते हैं. Next one is marked. मार्क करना, कोई भी चीज आप मार्क करते हो, that means what? कोई भी चीज नोटिस करना, कोई भी चीज पे मार्क कर देना, कोई भी चीज को टिक कर देना, चिन्ह लगा देना. ओके, सो फॉर एग्जांपल, मार्क करना कि ओ आई हैव मार्क दैट दिस स्टूडेंट इज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट. मैंने मार्क किया. मार्क किया मतलब मैंने पॉइंट किया, मैंने चिन्ह किया, मैंने नोटिस किया कि दिस स्टूडेंट इज वेरी ब्राइट स्टूडेंट. ओके, सो फॉर एग्जांपल, बचेंद्री पाल वाज मार्क्ड एज अ वेरी गुड माउंटेनियर. बचेंद्री पाल को मार्क किया गया, उसको नोटिस किया गया एज अ वेरी गुड माउंटेनियर. Mountaineer, I hope that is clear to you all. Mountaineer means mountain पे चढ़ने वाला person is called as mountaineer. Okay, mountaineering is that means what? पर्वत पे चढ़ने का जो process है, पर्वत पे चढ़ने का जो शौक है, that is called as mountaineering. इसी के आगे, mountaineer के आगे ing लगेगा, that is called as पर्वत पे चढ़ने का शौक. और mountaineer का मतलब क्या हुआ? पर्वत पे चढ़ने वाला person. Okay, I hope that is clear to you all. Okay, next one is ascent. ascent means किसी भी चीज पे चढ़ना. descent मतलब उतरना, ascent मतलब चढ़ना. Okay, ascent means to climb up and descent means to climb down. Okay, next one is provided. Provided means I will teach you all provided you all study carefully. मैं आप सबको पढ़ाऊंगी, लेकिन शर्त है कि आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई करो. Okay, provided means ये मेरा शर्त है. शर्त, कोई भी चीज का शर्त रखना, that is called as provided. For example, I will score very very good marks in half yearly exams provided that I will get a good internet. अगर मुझे good अच्छा इंटरनेट मिलेगा तो इस बार मैं half yearly exam से बहुत अच्छे अच्छे marks लाऊंगी. Avni is raising her hand. Avni, what problem do you have? I'm unmuting you, Avni. मैम प्रोवाइडेड का मतलब तो गिव भी तो होता है. प्रोवाइडेड के दो मीनिंग है. ओके, प्रोवाइडेड एक मतलब कि किसी भी कोई चीज प्रोवाइड करना. फॉर एग्जांपल, आई विल प्रोवाइड यू विद द नोट्स. मैं आपको नोट्स दूंगी. एक मीनिंग ये है हमारे पास. सेकंड मीनिंग है ये जो मैंने आपको बताया, क्या कि कोई चीज शर्त रखना. फॉर एग्जांपल, आई विल गो टू दिल्ली प्रोवाइडेड आई गेट द ट्रेन. मैं दिल्ली जाऊंगी अगर मुझे ट्रेन मिल गई तो. अगर बशर्ते मुझे ट्रेन मिल गई तो. आपने कभी वर्ड सुना है बशर्ते? कभी किसी ने वर्ड सुना है बशर्ते? बशर्ते मतलब कि अगर ऐसा हो गया तो मैं ऐसा करूंगी. आई विल डू दिस प्रोवाइडेड इफ आई हैव दिस. ओके, मैं अगर मेरे पास ऐसा है तो मैं ऐसा करूंगी. अगर वाली जो बात होती है वो हम प्रोवाइडेड करके यूज करते हैं. और दूसरा मीनिंग, टू प्रोवाइड समवन विद समथिंग.
किसी को कोई चीज तो प्रोवाइड मैम करना। प्रोवाइडेड के 2 मीनिंग होते हैं, एक तो गिव meanings. और एक शर्ट है। हाँ बस शर्तें, और अगर वाला जो थैंक मीनिंग यू। है। Avni, please, you can mute yourself, na? I will not be able to do so. Okay, let's move Thank towards the next one. Scale. Scale means what? किसी भी चीज scale आपको पता है, जो आपकी वाली scale है, एक तो एक वो scale है, एक scale on the scale of 1 to 2. ठीक है, किसी भी चीज को किसी पे नापना, that is called as scale. ठीक है. Okay, children, so we will continue with the vocabulary in the next class, or we will continue with the chapter in the next class. But till then, do you have any issues in today's class or in your half yearly exams? We can discuss. If you have any issues in your live class, in your half yearly exams, or in today's lecture, we can discuss. All of you. And I need all of you to be present with your cameras. Okay, I just want all of you to be present. I just need to see your faces. Okay. Everyone, just turn on your cameras faster. Parth is here, Divika, Vedang is here, Karunya is here, Anusha is here, Akshita is here, Amni is here, Akriti is here, Jiga is here, Dhruv Raj is here, Saksham is here, Push Kotari is here, and who are not here, मैं अभी उनके भी नाम लूंगी, नहीं तो फटाफट से आ जाओ. Badri is here, Yuvraj, Sarika, Chirag, Raghav, Anirudh, Purnakshi, Divyansh. आप लोग नहीं हो यहाँ पे. Please turn on your cameras faster. Chirag Soni, Yuvraj Gurjar, Vedang Pathak, Raghav, and Divyansh. Please turn on your cameras faster. Okay, children, so that's all for today's lecture. We will meet in the next one. Also, आपको कोई भी problem हो रही है, again and again I'm telling you what, that you discuss those problems then and there only. उसी चैप्टर, जब वो चैप्टर चल रहा है, आप तब की प्रॉब्लम सभी डिस्कस कर लो. अगर आपको लगे कि अब चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, अब मैं अपनी प्रॉब्लम्स कब डिस्कस करूं, सो व्हाट यू कैन डू, आप बाद में भी कर सकते हो. जब हमारे पास दूसरे चैप्टर्स चल रहे हैं, आप तब भी अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हो. लेकिन इस एग्जाम के एक दिन पहले आप आके जो मुझे प्रॉब्लम्स पूछ रहे हो, मैम हमें सारे के सारे आप क्वेश्चन आंसर्स भेज दो, दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल. ओके, ये मैं करूंगी भी नहीं और ये मैं एक्सेप्ट भी नहीं करूंगी कि मैम हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो. आप मुझे एग्जाम के, सम चिल्ड्रन आर सेंडिंग मी मैसेजेस, मैम मुझे आप एग्जाम के 1 घंटे पहले आप मुझे मैसेज कर रहे हो आप कि आप 1 से 8 के मुझे सारे क्वेश्चन आंसर्स भेज दो. What do you expect कि मैं आपको एग्जाम के 1 घंटे पहले सारे आपको क्वेश्चन आंसर्स भेज दूं and you copy from there? This is not the correct way. Okay, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जब चैप्टर्स चल रहे हैं आप तब पूछ लो, बट एग्जाम के अंदर आप 1 दिन पहले आके, 1 घंटे पहले आके प्रॉब्लम पूछना, that is not acceptable. Okay, children, so that's all for today's lecture. We will meet in the next one. Okay, bye bye then.